أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج سبق نمبر 5 ہے ہمارا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کلاسز میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا، آج ان ساری کلاسز کا اعادہ بھی ہوگا، یعنی ریویژن ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے۔ آج میں تلاوت نہیں کروں گی، آج آپ میں سے کوئی تلاوت کرے گا جس کو لگتا ہے کہ اس کی سورۃ الفاتحہ کی غلطیاں جو ہیں نا وہ ٹھیک ہو گئی ہیں، تو آپ میں سے کون ہینڈ ریز کیجیے، کون تلاوت کرے گا؟ جی السلام علیکم باجی، کوئی بھی کر سکتے ہیں؟ جی اسما چلیں آپ ہی کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اسما آپ نے پراپر ساری کلاسز اٹینڈ کیے ہیں؟ جی وجن
ساری کلاسز اٹینڈ کی ہیں آپ نے پچھلی نہیں جتنی بھائی بھی جان، آپ؟ 2 مس ہوئی ہیں مجھ سے، بیچ میں دو کلاسیں مس ہوئی ہیں، اوکے ٹھیک ہے. اچھا لیکن سنتی ہوں بعد میں، جو ریکارڈنگ ہے وہ سن لیتی ہوں. اوکے چلیں میوٹ کریں. جزاک اللہ خیر. جی روبینہ آپ جی پڑھیں ذرا، پھر میں بتاتی ہوں اکٹھی دونوں کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ہیلو السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کٹنگ آ رہی ہے. شعیب نام سے پڑھنا چاہ رہی ہیں تو جی میم. جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ چلیں جی العظیم. خیرن کثیرہ. میوٹ کر جی میوٹ کر لیجیے. چلیں ایک دفعہ میں پڑھوں تو اب دھیان سے آپ لوگوں نے کیسے ماشاء اللہ سسٹر نے جو سیکنڈ نمبر پہ جنہوں نے سنا ہے نا روبینہ، ان کا ماشاء اللہ اچھے ہیں بہت ہیں. پھر ہلکی خاص ماشاء اللہ اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے. ایک دو جگہ پر کمی ہے لیکن میں بتا رہی ہوں کہ جہاں جہاں کمی، ایک تو پر حروف میں یہ میں کہہ رہی ہوں پر حروف میں کمی اور باقی کے مخارج بھی کمی ہیں. تو ابھی میں ایک دفعہ پڑھوں گی تو پھر ذہنوں کو اور سے کہ کہاں کون کو کیسے ادا کرنا، کس کو پر کرنا کو کیسے. میم آپ کی آواز بہت اعوذ زیادہ آواز صاف نہیں آ رہی سسٹر میم. آج ابھی میوٹ رکھیے. اب کوئی بھی ایشو ہے اس لیے کٹنگ آ رہی ہے، اس میں بس کوئی نہیں ہے. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, उसमें कॉमन मिस्टेक हुई है। वो एक तो हरूफे हल्की अमदू और इहदीना सिरात वाली हा में किया। इय्या का उर्दू जो पढ़ा जाता है उसमें इज की आवाज नहीं आनी चाहिए। इय्या का बहुत सॉफ्टली आनी चाहिए, अदा हो ले शोर की आवाज ना आए। ये मैं शुरू से बता लोगों को, लेकिन अभी तक हो रही है अक्सर। का नबुदू दो सिर्फ पेश है, इसको वाव मत है एक सिस्टर ने, नाबू नहीं है। वुदू वुदू सिंगल वर्ड है, वाहिद का है, और अगर हम नाबुदू कर जाते हैं तो ये दू जो है ये जमा इस्तेमाल होता है होगा, इसलिए बता दीजिए। या में शोर की आवाज ना आए, पेश को मद नहीं करना। उसके बाद एक मिस्टेक, वो इहदीना सिरात में इह पे कलकला हो गया, हा पे कल, इहदीना तल नहीं है, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, तल मुस्तकीम नहीं, तल मुस्तकीम। तो को करके पढ़ना है। अगला लफ्ज की तरह है वल्लज़ीना, सिरात पे तीनों रूप पुर हैं, स्वाद भी और भी पुर है। और है जिनका ठीक नहीं है वो इसको ठीक करें, हल्क से इस आइन को अदा करें। अनअमत अलैहिम, जीना में जीना नहीं करना, सख्ती से जाल को करना, ये न अदा होने वाले से है जाल। जी, और गैरिल मगज़ूबी, मगजूबी नहीं है, ये जो है। इसका मखरज आपको क्या था, जवाब का मखरज जो है की करवट आप ऊपरी दाढ़ों की जड़ को लगाए, राइट या लेफ्ट, जोन सी साइड आपकी जुबान लग, तो फिर ये जो है वो अदा होगा। तो इसमें बहुत वीक हो जो है ना इसका मखरज। अक्सर सिस्टर्स का जो सबक है आडियो में, उन गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिन, तो ज़ाद है, ज़ुआद है, ये जो हद अच्छे से आप प्रैक्टिस है। बाकी नमाज में हमने पढ़ा, और नमाज पहली सूरत की इतनी गलतियां, तो फिर बाकी नमाज हाल होगा। अल्लाह हम सबको मेहनत और के साथ अपनी नमाजों को करने की भी तौफीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आते हैं हरूफ तहज्जी, हम सीखे हैं माशाल्लाह से, सीख लिए अभी तकरीबन, इसलिए रिवीजन करेंगे। मुंह के खाली हिस्से से होता है, और बा होंठ होने वाला हर्फ को चीरते हुए बा करेंगे, इसको बा करेंगे। ये सारे लेसन जो जितने अभी पढ़ चुके हैं उसकी रिवीजन मैं आपको वो करवा रही हूँ। आ जो है होंठों, जुबान की नोक जो है वो हाथों की जड़ की सा जो है वो नरमी से अदा होने वाले हरूफ में से है। सा की नोक लगे ऊपर वाले दांत के, दो दांत सिरे को, सा सा नहीं पढ़ना। सा। जीम जुबान से अदा होता है, हा हरूफ में से है, वस्ते है ये, खौफ हरूफ हल्की है, लेकिन ये इब्तदाई हल्का है। ता और सेम है, मखरज रानी से अदा होने में से है, जाल, सा जाल, और रा पढ़ा जाएगा जा से अदा होने वाले हरूफ में। तीन भी सख्ती अदा होने वाले से है, जो उनका वस्त है शीन, ये दोनों हैं एक ही मखरज से हैं। स्वाद, स्वाद, जा सीन और स्वाद, स्वाद आ जाएगा। स्वाद का मखरज अभी मैंने जुबान की करवट आप ऊपर वाली जो है उनके जड़ को लगाएंगे। और हरूफ में से है ता दाल, इनका एक मखरज है, और
वो जो है इसको पूरा पढ़ा, सा जाल वो एक मखरज के हैं, आइन और इन, आइन भी हरूफ हल्की में से है, जो है वो हा, आइन साथ है वस्ते हल, और गैन खा के इब्तदाई है। वाले दांत जो है होंठ पे लगेंगे, फा ये हरूफ शफ़ में से है, यानी होंठों से वाले हरूफ में से है। ऑफ और क्या, उनका भी करीब करीब का मखरज, ऑफ जो ऊपर जो तालु है नर्म की तरफ उसको लगाएंगे जुबान की, तो ये पुर में मोटी आवाज में उठेगी हमारी जुबान, तो ये कौफ अदा होगा, और जो है वो जड़ लगेगी मुंह के पे जो तालु है उसको आवाज बारीक। लाम, लाम जुबान की अदा होगा, मीम होठों से अदा वाला हर्फ है और में से है, भी जुबान की नोक से अदा होगा, औ होठों को गोल करके अदा होगा, ये भी हरूफ शफ़ है। और हा, हा इंतहाई हल्क से, ठीक है, ये हरूफ में से है। हमजा भी हरूफ हल्क से है, और आगे या है, जीम शा का मखरज, ठीक है। ये सारे खारिज, कोशिश तो मेरी यही है कि प्राप्त से आपको बताए जाएं, प्रैक्टिस लोगों ने खुद करनी, मेरा काम बस है, और करके भी दिखाना है, लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस नहीं करें आप मखारिज ठीक नहीं, तो प्रैक्टिस है। और क्या हमने पढ़ा था मखारिज, मखारिज का क्या मतलब, मखारिज मखरज जमा है, जमा है मखरज। मखरज किसको कहते हैं, जिस जगह से हर्फ निकलती है उसको मखरज कहते हैं। मखारिज की तादाद जो है वो यानी 17 है, जिनकी हम आगे पढ़ रहे। ये मखारिज का पर आपके सामने कौन से एक ही मखे हरूफ कलर सेम, एक ही कलर किया हुआ है, लिखे हुए हैं, तो ये जब आप इनको देखेंगे और जो स्लाइड्स में हम पढ़ रहे हैं उनको भी देखेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से याद होगी। अब एक जैसी हरूफ, मखरज नंबर 1 जौफ हमने पढ़ा था, तो वाव और मद्दा के मानी क्या है, को लंबा करके आ जाता है, खींच का मतलब होता है खींचना, लंबा करना। अलिफ का क्या है, जिस पहले जबर होगी उसको मद्दा कहते हैं, यानी अलिफ, खाली अलिफ, अलिफ से जबर है उस मद्दा कहेंगे, ठीक है। और मद्दा क्या है, वाव से पहले पेश होगी साकिन से पहले, ये जरूर देगा कि वाव साकिन से पहले पेश है वो मद्दा कहलाती है। और या मद्दा या से पहले जेर होगी साकिन से पहले, साकिन यहाँ मिसिंग है हुआ, लेकिन आप लोगों ने या से पहले जेर होगी तो या मद्दा कहते हैं। मद्दा को मद्दे असली भी हैं, और ये 2 हरकत को मद किया जाता है, हरकत जितना इनको के अदा किया जाता है। दूसरा मखरज देखा था हलक, हलक गले को कहते हैं, और हरूफ हलक में पढ़े थे, हलक के 3 हैं। इंतहाई हलक आखिरी हिस्सा, हिस्सा क्या है, ये जो हमारे हल्क की तरफ जो हिस्सा है उसको कहता है हल्क। इसके 2 हैं, हमजा और, ये 2 हलक के नीचे हिस्से से अदा होता है। हिस्सा मतलब जो की तरफ हमारे तन का जो हिस्सा की तरफ है, वहां से ये हा और हा, हमजा हा, हा इसको हा नहीं, इसकी अदायगी के वक्त हवा नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है, नीचे को खींचते हैं फिर अदा होता है। ये हरूफ को हरकत अदायगी मश्क की थी तरह से करते हैं। जबर हमजा,
लेकिन हमजा है इसे अदा किया जाता है। पहले हमजा पर है, जबर है, और आगे जो है साकिन हमजा है, पहला हरकत के साथ ये अगले को झटका। ठीक है। इ, आ, लहू, देखिए हाथ के साथ लहू अनतहुम, इसको ऐसा नहीं करना, हमजा को पूर्ण देना, ये गलती ये भी होती है, हमसे हम हो जाता है, तो ये ख्याल करना है कि नहीं करना, मोटा नहीं पड़ना इसको। आगे हाँ हरकत के हाँ आह आह जी हम हा का मखरज पढ़ रहे थे। हमजा जबर आ, हमजा जबर हा आह, रब्बिही अलैहि हाजरू इलैहा। वक्ते हल्फ के हरूफ जो हैं वो आइन और हा हैं। ये दोनों हरूफ हल्फ के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। जुबान पीछे हल्फ की तरफ मजबूती से ले जाते हुए बारीक आवाज में आइन और हा, इन दोनों को अदा करते हैं। इनका हरकत के साथ एक्सरसाइज करते हैं। हमजा जबर आइन आ, आ, आइन को वक्ते हल्फ से निकालेंगे। आसिफु आलियतु माअहु जअलना। हा का मखरज हमजा जबर हा आह। अब ये वाली हा अदा करते हुए गले से हवा निकलती हुई महसूस होगी, आपको आवाज भी आएगी। आह हिल्लु वर्रूहु नशरह यहसबु। इब्तदाई हल्फ के दो हरूफ गैन और खा, ये नुक्तों वाले दो हरूफ इब्तदाई हल्फ, ये दोनों हरूफ हल्फ के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं, यानी मुंह की तरफ जो हल्फ का हिस्सा है, जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ बुलंद करते हुए मोटी आवाज से ये दोनों हरूफ मोटी आवाज से पढ़े जाएंगे। गैन खा, गैन खा। खास को अदा करते हुए गले की खराश के साथ इसकी आवाज आएगी। इसकी जबर गैन आव आग आग नहीं करना इसको, वरना कलकला हो जाएगा। आव गफूरु गाशियतु गुरफतु गुफरानक। अख खबीरु खजूलन खजूलन खुशूअन यख्तफु। ये देखें पिक्चर में, अगर आप देखें तो आपको सही समझ आ जाएगी कि कौन से दो हरूफ जो है कहाँ कहाँ से अदा होंगे। गैन और खा इब्तदाई हल्फ से, आइन और हा वस्ते हल्फ से, और हमजा और हा इंतहाई हल्फ से। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से किया करें प्लीज। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ आपको आपके जो है ना वो ठीक नहीं होंगे, अदायगी ठीक नहीं होगी। मखरज नंबर 3, जुबान से अदा होने वाले हरूफ हमने पढ़े थे। कॉफ और कैफ का मखरज। कॉफ जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर के तालु से लगाने पर मोटी आवाज में कॉफ अदा होता है। कॉफ जो है ऊपर तालु का जो नर्म हिस्सा है गले की तरफ, वहां पर ये जुबान की जड़ लगेगी, तो कॉफ मोटी आवाज में करके इसको अदा करेंगे। काफ जो है जुबान को कॉफ की जगह से कुछ मुंह की तरफ यानी सख्त तालु की तरफ ले जाके ऊपर लगाएंगे,
जुबान की जड़ को, तो फिर ये बारीक आवाज में कैफ अदा होगा। ऑफ कैफ, देखें दोनों में फर्क है आवाज, ऑफ कैफ, ठीक है। इसको कैफ नहीं पढ़ना, बाद लोग कैफ करके पढ़ते हैं, ये ठीक नहीं है, कॉफ और कैफ है। जब मखरज पे लगाएंगे ना तो फिर एग्जैक्ट आवाज आती है। कॉफ, आप को काफ रूपे कलकला में से भी है, इसलिए इसको हिला के पढ़ेंगे। आप अल मकाबिर अल मुस्तकीम खलकतनी बिल हक़, अक, अक या अक करेंगे तो इस पे कलकला हो जाएगा, तो ये कलकला वाले हरूफ में से नहीं है, कलकला होगा तो ये गलती होगी। अक या अक, ख कर ले तो कलकला से बचत हो जाती है। अत्तकासुर कल्ला लकुम मलिकिन नास, जीम शीन और या, इनका मखरज तीनों हरूफ का एक ही मखरज है, ये तीनों हरूफ जुबान के दरमियान को दरमियाने तालु से लगाकर अदा करेंगे, यानी जो सख्त तालु है उसका दरमियान वाला हिस्सा जो है वहां पे लगाएंगे इन तीनों हरूफ को, तो फिर ये जुबान को, तो फिर ये अदा होंगे। अश शर्री व शुक्री का यशफाउ व शमसी, अज, अज जीम जो है वो हरूफ कलकला में से है, यानी साकिन हालत में जब ये हर्फ आएंगे, हरूफ आएंगे तो वहां पर हिला के इनको पढ़ा जाएगा। अज, जा फी जीदिहा जुइन अलम यजअल, या की मश्क, क्योंकि ये मद्दा के बगैर है। आई, इसको आई जी नहीं पढ़ना, आई यशफाउ युहयी, युहयी नहीं करना, युहयी युमीतु अलैहिम। दुआत का मखरज जो आप लोगों को मुश्किल लगता है, ये मुश्किल नहीं है, ट्रिकी जरूर है, और इसको सीखते हुए इसकी अदायगी करते हुए इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, अगर आप फील करें तो आपको मजा आएगा इसको अदा करने में। जुबान के किनारे को, यानी जुबान की करवट को दाएं या बाएं जानब ऊपर की दाढ़ों की जड़ जो मसूड़े हैं उन पे लगाएंगे तो ये गॉड अदा होगा, चाहे राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, जौन सी साइड पे आपकी जुबान मुड़ जाती है इजीली उस साइड पे उसको मोड़ के तो ये गॉड अदा करेंगे। इसको ज्वाद और द्वाद नहीं पढ़ना, ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि ये दोनों इसके जो तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। इसका सही जो मखरज है उस पे अगर आप जुबान टिकाएंगे लगाएंगे तो फिर इसकी आवाज एक्यूरेट निकलेगी। गॉड, गॉड। आज अब ये भी हरूफ कलकला में से नहीं है, इस पे भी आमतौर पर कलकला हो जाता है, गलती है ये, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। द्वाद जब साकिन होगी तो इस पे कलकला नहीं होने देना, आद नहीं करना, इसको आज पकड़ के रखना है। तक़वी अल मग़ज़ूबी क़ज़ीलिन फ़ज़्ज़लतुकुम, देखिए मेरी आवाज में ना ज की आवाज आ रही है ना द की आवाज आ रही है। फ़ज़्ज़लतुकुम, लाम नून और रा का मखरज क्या है? लाम जो है जुबान के अगले हिस्से को ऊपर सामने के 6 दांतों और 2 दाढ़ों के साथ, यानी सामने वाले जो दांत हैं उनको अच्छी तरह से लगाने से जुबान फिर ये अदा होता है लाम, लाम। अल करके देखें, आपको ट्रिक बताई थी आगे पढ़ी हुई थी कि हम जो जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है उसको साकिन करके उससे पीछे मुतहर्रिक हमजा लगा दें, तो फिर जहाँ उस हर्फ की आवाज रुकेगी यानी आपकी जुबान जहाँ टिक जाएगी वही उसका मखरज होगा। तो अल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ जुबान लग रही है। तो लाम और नून जुबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों को के मसूड़ों को लगे। अब लाम जो है वो 6 दांत और दाढ़ें भी शामिल थी 2, अब नून जो है वो सिर्फ सामने वाले 6 दांतों को लग रहे, उसके मसूड़ों को लग रहा है, जुबान का अगला हिस्सा। नून, नून, ठीक है। रॉ,
जुबान की नोक की बैक साइड जो पुश्त है उसको ऊपर के सामने वाले 4 दांतों के मसूड़ों से लगाकर अदा करेंगे। रॉ रॉ अर्ज अर्ज करेंगे तो जहाँ जहाँ आपकी जुबान लग रही है वही इसका मखरज होगा। हरकत के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अल, इसको अल नहीं करना। अक्सर ये गलती होती है, अल्हम्दुलिल्लाह में भी रब्बिल रब्बिल आलमीन कर जाती हैं, तो ये लाम पे कलकला नहीं करना। अल हमदु और रब्बिल आलमीन। ठीक है, ये देखें सूरतुल फातिहा में ही हमारी ये सारी गलतियां जो है ना वो निकल रही होती हैं। अल पकड़ के रखना है इसको। गैरिल मग़ज़ूबी अल काफिरूना यदखुलूना फिल उक़द, फिल उक़द नहीं करना, फिल उक़द। अर, रा को पुर करेंगे, पीछे ज़बर है अर, रिहला रिहलता। अब यहाँ रा जो है ना वो बारीक पड़ी जाएगी। रिहलता नस्रुल्लाहि, यहाँ स्वाद भी पुर है, रा भी पुर है और अल्लाह का लाम भी पुर है। नस्रुल्लाहि अरसला मर्रतिन, नून अन, इहदिना नहनु अनफुसिना नअबुदु। तो अन देखें, जो आपके सामने पिक्चर्स हैं उनको साथ साथ देखेंगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि कौन से जुबान का कौन सा हिस्सा कहाँ लगेगा तो कौन सा हर्फ अदा होगा। ठीक है, और ये देखें हरूफ, ये गुन्ना के हरूफ में से भी है नून। आपको वो ग्रीन कलर नाक की तरफ भी नजर आ रहा है हल्का हल्का, यानी ये गुन्ना कर किया जाएगा नून पे। कहाँ गुन्ना किया जाएगा कहाँ नहीं वो आगे हम पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं वैसे हम, लेकिन अभी रिवीजन में आएगा इंशाल्लाह आगे। तो दालता, ये तीनों हरूफ जुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगाने से अदा होते हैं। ता और दाल बारीक है और तो मोटी आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। तो पुर हरूफ में से है, खुद जो हमने हरूफ पढ़े थे उनमें से है ये। तो मोटी आवाज कैसे होगी? तो में जुबान के पिछले हिस्से को ऊपर की तरफ जब हम उठाते हैं तो फिर आवाज मोटी अदा होती है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हरूफ की। दाल हरूफ कलकला में से है। अद, अलहम्दु, अल अलहम्दु नहीं करना, अलहम्दु। हम पे भी आपने मीम को छोड़ना नहीं है, इस पे भी कलकला अक्सर इस तरह का हो जाता है। अलहम्दु नअबुदु इहदिना अखलदा। ता का है अत, इसको अत नहीं करना, अत करेंगे तो कलकला हो जाएगा, जबकि ये ता हरूफ कलकला में से नहीं है। तो इसको थ की आवाज के साथ पढ़ सकते हैं, अत, ताकि कलकला ना हो और ताकि आवाज भी हमें आए, साउंड सुनाई दे हमें कि ता हमने अदा की है। अत करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ता की आवाज आई नहीं है ना, अदाई नहीं हुई, इसलिए अत के साथ इसको पढ़ते हैं जो साकिन ता है। नफ़ासाति अनअमत तब्बत इत्तकू। तो भी हरूफ कलकला में से भी है, साकिन हालत में जब ये हर्फ आते हैं तो इन पे कलकला होता है, यानी आवाज पलट कर आती है, मखरज पे रख के इनको छोड़ दिया जाता है। हमजा जबर तो आत, आत, आतो पुर भी करेंगे और कलकला भी करेंगे। फिर आतो यद सूतु आतो आमाहुम तो आमी। जुबान से मुतल्लिक ये जो नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं जुबान से ही अदा होते हैं, ये भी सा जाल ज़ा। इनका मखरज क्या है? ये तीनों हरूफ जुबान की नोक को ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के अंदरूनी सिरे यानी लगाकर अदा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सा और जाल की आवाज बारीक होती है, जबकि ज़ा की आवाज मोटी होती है। ज़ा जो है ये हरूफ पुर हरूफ में से है, खुस्वा क़ैद वाले हरूफ में से। तो इसमें जुबान जो है उसकी नोक सामने वाले 2 दांतों के
सिरे को लगाएंगे। ये देखें पिक्चर में आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है कि जुबान कहाँ लग रही है। आज, ठीक है, आज नहीं करना इसको, ना ही सीधी की आवाज आए और ना ही इस पे कलकला हो। ये गलती, दो गलतियां हो सकती हैं। और ना ही इसको पुर करना, ये तीन गलतियां इसी हर्फ पे हो सकती हैं अगर हमें एहतियात से ना पढ़े। आज, इज़ा, अल्लज़ीना, अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाह। ये हम आमतौर पर क्या पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाह, ये अऊज़ु बिल्लाह नहीं है। अऊज़ु, अज़हबा, अक्स नहीं कहना इसको, इसमें बिल्कुल भी इन हरूफ में चीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत नरमी से अदा होने वाले हरूफ हैं ये। अक्स, कसीरन, सुम्मा, नुरिसु, व नुस्नी, नुस्नी, नुस्नी नहीं करना। रॉ, रॉ पूर्व हरूफ में से है। अज, अज़ीमन, हिफ्ज़ुहुमा, अज़लिमा, अज़लिमा, लिज़्ज़ालिमीन। स्वाद, जा और सीन, ये तीनों हरूफ सख्ती से चीटी के साथ अदा होने वाले हरूफ हैं। ये तीनों हरूफ जुबान की नोक को ऊपर नीचे के दो दो यानी सामने के चार दांतों के अंदरूनी किनारे के करीब करने से अदा होते हैं। इसमें फर्क क्या है इनमें कि जा और सीन चीटी की आवाज के साथ अदा होगा, सख्ती के साथ, और स्वाद थोड़ी मोटी आवाज, चीटी की आवाज तो होगी लेकिन मोटी आवाज होगी इसकी। तो मोटी आवाज के लिए जुबान का जो पिछला हिस्सा है, जुबान की जड़, वो ऊपर को उठती है, मुंह के ऊपर वाले हिस्से की तरफ। ये जो है ना एक्सरसाइज क्या है, आश, स्वाद अस नहीं करना इसको, आश तो पुर करना है। वस्वैति लिलमुसल्लीना स्वलातिहिम। तीन, अस, अब यहाँ पर बारीक भी है आवाज और चीटी भी है। अस, बिस्मिल्लाह, हासिदिन, युवस्विसु, साहून। अज, ये भी चीटी के साथ है, सख्ती से अदा होने वाला हर्फ है। अज, अजन, तउज़्ज़ुहुम, तुइज़्ज़ु, हुमज़ा, हुमज़ातिल हुमज़ा। ठीक है, ये आपका लेसन भी था सूरा हुमज़ा में आपने जो सुनाया है। तो जा सीटी की आवाज के साथ सख्ती से अदा होगा। मखरज नंबर 4 हमने सीखा था होंठ, होंठों से अदा होने वाले हरूफ फा, बा, मीम, वाव, हरूफ शफ भी कहते हैं इनको। ठीक है, शफ कहते हैं होंठ को, तो होंठों से अदा होने वाले हरूफ को हरूफ शफ भी बोलेंगे। नीचे निचले होंठ के गीले हिस्से को ऊपर के दो दांतों के किनारे लगाकर इसको अदा किया जाता है फा, यानी ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ पर लगेंगे, उसके अंदर वाले गीले हिस्से को। फा, अफ, अल, फीली, कुफुवन, कुफुवन। अब फा और वाव में अपने फर्क करना है। ठीक है, कुफुवन, कुफु वन नहीं करना, वन हम बोल जाते हैं उसमें वाव में आपका सेम फा की तरह होंठ जो है वो लग रहे होते हैं, नीचे वाले सॉरी ऊपर वाले दांत जो है ना वो लग रहे होते हैं नीचे वाले होंठ को, वो नहीं लगने देने वाव में। फा में तो लगेंगे, वाव में नहीं लगेंगे, तो इसका फर्क करना है। कुफु वन, अफ वाजन या अफ वाजा। वाव, बा और मीम, वाव होंठों को गोल करने से वाव, वाव अदा होगा, और बा होंठों के अंदरूनी हिस्से को आपस में मिलाकर जुदा करते हैं। ब, ब स्माइल वाले अंदाज में लेकर जाएंगे। ब, मीम होंठों के अंदरूनी खुश्क हिस्सों को आपस में मिलाकर अलग करने से मीम, मीम अदा होगा। आओ, हमजा जबर वाव, आओ, ये लीन का कायदा भी है, आओ वाव लीन है ये। वसवासी, वल अस, वलम यूलद,
बा, अब रूफे कलकला में से है बा, तो यहाँ हम इसको हिला के पढ़ेंगे, यानी पलट की आवाज आएगी, मखरज से रख के छोड़ देना है हमको। अब रब्बी युकज़्ज़िबु हबलु, हबलु यानी बात साकिन जब होगा उस पे कलकला होगा। मीम अम, इसको अम नहीं करना, छोड़ना नहीं। अम मिन मा खलक मलिकिन नास। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में भी हमने पढ़े हुए तहज्जी, अब दोबारा से देखते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अलिफ ब, इसको बा नहीं पढ़ना। आमतौर पर जो गलती है हम सबकी होती है वो क्या होती है, बा, ये बा नहीं होता। ब, ब, त, स, जीम, हा, खा, दाल, लाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, صاد, वाद, ता, रा, आइन, गैन, फा, قاف, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। अब कलरिंग देख लें कि एक ही मखरज से अदा होने वाले जो हुरूफ हैं ना, उनको सेम सेम कलर दिए गए हैं। ये अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे से मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, समझ कर इस कुरान को अच्छे तरीके से सीखने की, समझने की, अमल करने की और आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी इस एफर्ट को अल्लाह ताला अपनी रहमत से कबूल और मंजूर फरमाए। हम सब की, पढ़ने वालों की भी, पढ़ाने वालों की भी, और जो इस पूरी टीम जो है हमारी, हम तक ये सारा सिस्टम जो पहुंचा रहे हैं, सर इजाज हैं मेन, अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती, ईमान वाली बेहतरीन जिंदगी, तकवा वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला राजी हो जाए। अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर वत-तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफत बिमाअनीह वन-नज़र फ़ी अजाइबि वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री वरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु warzuqni तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अज़हिबिल बअस रब्बन नासि वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अस्अलुल्लाहिल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़िना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि क़ल्बना वश्फ़ि सक़मना। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िहिम वअफ़ु अन्हुम वअक्रिम नुज़ुलहुम ववस्सिअ मुदख़लहुम वअग़सिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िहिम मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबल अब्यद मिनद दनस वअब्दिलहुम दारन ख़ैरन मिन दारिहिम वअहलन ख़ैरन मिन अहलिहिम वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिहिम वअदख़िलहुमुल जन्नह
وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.